Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe. Children, in the last video, I have revised chapter number 7, that is the getting to know plants. Today, I am going to revise and we will discuss about the chapter number 8, that is the body movements. Very important chapter, bacho. Okay, as you know, in this chapter, we are going through about the movements in the human body and about the movements in different organisms. Okay, so as you know, we have discussed this chapter thoroughly, but as the half yearly exams are approaching, so we are going to discuss this chapter one more time. That is, we're going to revise this chapter. Okay. So when you look your body, or you'll see when you look your own movement, okay, how do you feel? There are varieties of movements in your body, in the animals. Okay, whenever you do the physical exercise at your school, okay, so how you feel? How do your hands move or legs move, or when you do the different exercises? So let us try some of many movements our body is capable of. Okay, so before starting that, we'll start from the skeletal system. Okay, a very important part, the skeletal system. This is the human skeleton. Okay, and you know this skeletal system along with the muscular system, skeletal system, okay, along with the muscular system helps in the movement in the human beings, and you know this. And you know the human skeleton is made up of 206 bones. So what are the functions of this human skeleton? Okay, you'll see that the human skeleton helps in the movement of various parts of the body. Yes. Okay, the first function of the human skeleton is it helps in the movement of various body parts. Second is it provides the shape and support to the body. अगर skeleton नहीं होता तो आपकी बॉडी की जो शेप है या जो सपोर्ट मिलता है आपकी बॉडी को, डेफिनेटली वो चीज़ नहीं मिल पाती आपको. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन बच्चों, इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स. हमारे जो अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स है जो बहुत ही सॉफ्ट है, डेलिकेट हैं, ठीक है, उनको ये प्रोटेक्ट करता है, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनीज, है ना. तो इन सारी चीज़ों को क्या करता है बच्चों, ये प्रोटेक्ट करता है. इवन ब्रेन ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट वी कैन से द फंक्शन ऑफ skeletal सिस्टम इज द बोन्स आर फिल्ड विद अ सब्सटेंस कॉल्ड द बोन मैरो. यू नो दिस. जो हमारी बोन्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर बोन मैरो पाया जाता है, और उसी बोन मैरो में हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं उनका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है. तो जो हमारा बेसिकली जो स्केलेटल सिस्टम है बच्चों, ठीक है, उसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे ऊपर की तरफ होता है क्या, स्कल. यू नो दिस. ओके, हियर इट इज. दिस इज द स्कल. You know this skull is made up of many bones and they all are joined together. ठीक है. And what is the function of skull बच्चों? It encloses and protects a very important part of your body, that is the brain. है ना. So the skull protects the brain from injury. All the bones in the skull, जितने भी bones होती हैं skull में, वो सब वो they all are fixed. वो move नहीं कर सकती except one bone. That is what? That is the lower jaw. आपका जो लोअर जॉ है आपके पूरे स्कल सिस्टम में, सिर्फ आपका जो लोअर जॉ यानी जो निचला जबड़ा है, सिर्फ वो ही मूव कर सकता है. इसके अलावा आपके स्कल में और कोई भी चीज़ मूव नहीं कर सकती. ओनली द लोअर जॉ कैन मूव. एंड आपको पता है इसी लोअर जॉ की मूवमेंट की वजह से हम बोल पाते हैं या टॉक कर पाते हैं या फूड को क्या कर पाते हैं, च्यू कर पाते हैं. सेकेंड है रिब केज. हियर इट इज. दिस इज द रिब केज. फिगर 8.9. You know this rib cage provide the protection to the what, heart and lungs. जो आपके जो सॉफ्ट इंटरनल जो पार्ट्स है, दैट इज द हार्ट हो गया, लंग्स है, ठीक है, इनको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. और आपको पता है दिस ह्यूमन बीइंग्स हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब्स. कितने पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है, है ना. आप अपने रिब्स को फील भी कर सकते हैं, ठीक है. अगर आप फिंगर के को ले जाए अपने चेस्ट पे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इधर आपको जो है आपको फील होगा आपके रिब केज, आप देख सकते हैं, है ना. तो ये जो होते हैं ना, जो रिब्स होते हैं, ठीक है, ये क्यूरियसली बेंट होती हैं एंड दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर. आप देख सकते हो, है ना. बैक बोन है और वहाँ से जो है बेंट टाइप की बोन्स हैं जो रिब केज का फॉर्मेशन करते हैं, इसी को हम रिब केज बोलते हैं, है ना.
तो ये क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनको क्या करता है बच्चों, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आता है बच्चों हमारा बैकबोन, ये फिगर 8.10 है ना बच्चों। ये जो बैकबोन होता है इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स, मीन्स बहुत छोटे छोटे 33 स्मॉल बोन्स को जोड़ करके, ठीक है, ये आपके बैकबोन बनते हैं। इसको हम लोग वर्टिब्रे बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, वर्टिब्रे, है ना। जो स्मॉल छोटे 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 जो बोन्स हैं उनको हम लोग वर्टिब्रे बोलते हैं। और ये सारे वर्टिब्रेज 33 होती हैं, और ये 33 वर्टिब्रेज मिलके क्या बनाती हैं, एक बैकबोन बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ अगर ये जो बैकबोन है इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, देन व्हाट विल हैपन। सोचो जरा, अभी तो बहुत 33 स्मॉल स्मॉल बोन से मिलकर के आपके बैकबोन बनी। अगर मैं पूछूं कि ये पूरी की पूरी जो 33 बोन्स है इनको हटा के सिर्फ एक बोन लगा दिया जाए यहाँ पे, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी बॉडी पे, सोच सकते हो आप। व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली आप अपनी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, है ना। आप जो है झुक सकते हो, बेंट हो सकते हो, ठीक है, या जो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आपके मूवमेंट में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, डेफिनेटली वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी बच्चों, ख़त्म हो जाएंगी, है ना। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आपके लिम्स, हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, हिंड लिम्स एंड व्हाट, फोर लिम्स। हिंड लिम्स में आपके लेग्स आते हैं और फोर लिम्स में आपके आर्म्स आते हैं, ठीक है। सो जो हैंड लिम्स होते हैं, लेग्स होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर व्हाट, वॉकिंग, है ना। और जो आपके फोर लिम्स होते हैं दे अलाउ अस टू डू वेराइटी ऑफ टास्क, दैट इज लिफ्टिंग एंड यूजिंग द ऑब्जेक्ट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन स्केलेटन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बच्चों जो बोन्स होती है हमारे बहुत रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम बेंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो फिर हम, तो हमारी बॉडी मूव कैसे करती है, बोन्स बहुत रिजिड है, ठीक है, वो बेंड नहीं हो सकता, ठीक है, तो फिर हमारी बॉडी में मूवमेंट कैसे होता है, हम अपने एल्बो को कैसे और अपने नीज को कैसे फोल्ड अप कर लेते हैं। तो ये जितने भी मूवमेंट्स होते हैं दे ऑल आर ब्रॉट अबाउट बाय व्हाट, जॉइंट्स एंड मसल्स। यस, ये जो जॉइंट्स एंड मसल्स होते हैं इन्हीं की वजह से हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो मूव कर पाते हैं, है ना। तो व्हाट आर द जॉइंट्स, जॉइंट्स आर द प्लेसेस वेयर 2 और मोर बोन्स व्हाट मीट, यानी जहाँ पे 2 और 2 से ज़्यादा बोन्स आपस में क्या करती हैं, मिलती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। हियर इट इज, यस, सो दिस प्लेसेस आर कॉल्ड द जॉइंट्स, है ना। तो एक एक करके हम जॉइंट्स बच्चों पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो जो जॉइंट्स होते हैं ना बेसिकली वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। एक तो होते हैं फिक्स्ड और इमूवेबल जॉइंट्स, जो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, एकदम फिक्स्ड होते हैं, है ना। जैसे स्कल, ये क्या करता है, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। कुछ होते हैं स्लाइटली मूवेबल, जो बहुत थोड़ा बहुत मूव करते हैं, है ना, दे प्रोवाइड द सपोर्ट। और एक होता है आपका फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, दैट आर द वन दैट अलाउ अस टू परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स। तो जो 4 मेजर आपके मूवेबल जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में, हम उनको डिस्कस करेंगे बेसिकली। सबसे पहले हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पढ़ा हुआ है, बताया है मैंने इसके बारे में आपको, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट आप देख सकते हो फिगर 8.2 में किस तरीके से दिखाया गया है, एक बॉल है और एक सॉकेट है। एक्चुअल फिगर इसका ये है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो बच्चों होता है, इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट एक बॉल लाइक सरफेस होता है एक बोन का, जो क्या होता है दूसरे बोन में, ठीक है, जो कप लाइक होता है उसमें क्या होता है वो फिटेड होता है, ठीक है। सो ये होगा, आप ये दोनों मिल के आपको क्या बनाएंगे, बॉल एंड सॉकेट, है ना। तो बच्चों एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है इट अलाउज द मैक्सिमम मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शन। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ये मैक्सिमम मूवमेंट आप में क्या कर सकता है, ठीक है, और इवनली सारे डायरेक्शन में कर सकता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बच्चों, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स की अगर बात करें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की, तो आपका हिप, जो आपके हिप के पास जो जॉइंट है वो, और आपका जो शोल्डर जॉइंट है, ठीक है, जो शोल्डर में आपका जॉइंट है और जो आपका हिप जॉइंट है, ये 2 एग्जाम्पल्स है किसके बच्चों, आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के, ठीक है। अब हम आपके बात करते हैं पाइवोटल जॉइंट्स। बच्चों जो पाइवोटल जॉइंट होता है ना, दिस जॉइंट is there where our neck joins the head,
जहाँ आपका नेक और आपका हेड जॉइंट होता है, ठीक है, वहाँ पे आपका पाइवोटल जॉइंट पाया जाता है. एंड इट अलाउ अस टू बेंड our head forward, backward, and we can able to turn the head round and round, right or left. So these all the movements are allowed by what? By pivotal joints. है ना? In this joint what happen? A rounded surface of one bone. In this joint, a rounded surface of one bone fits into a ring formed by the other. है ना? यानी एक बोन का जो राउंडेड सरफेस है वो दूसरे बोन के रिंग लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है? फिट होता है ना? और इस तरीके से फिट होता है कि जो आपकी बोन है वो इट इज़ एबल टू रोटेट इन ऑल द डायरेक्शन over. So the example of this are what? The joint where the neck and joint the head. यानी जहाँ पे आपका नेक और हेड जॉइंट होता है वहीं पे आपका सिर्फ पाइवोटल जॉइंट्स का बच्चों पाया जाता है. ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है आपका हिंज जॉइंट. ठीक है, जैसे आप जो डोर को क्लोज करते हो, बंद करते हो ना, तो क्या होता है? डोर एक ही डायरेक्शन में क्लोज और ओपन हो सकता है ना? दूसरे डायरेक्शन में वो चीज़ नहीं हो सकती. तो वही इन द सेम वे हिंज जॉइंट भी काम करता है. दिस काइंड ऑफ जॉइंट प्रोवाइड द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. इस टाइप का जॉइंट आपको बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ही, जैसे हिंज ऑफ अ डोर, जैसे डोर का हिंज होता है उसी प्रकार से बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ही आपको शो हो देखने को मिलेगा हिंज जॉइंट में. ठीक है, अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो हिंज जॉइंट होता है इट इज़ फाउंड वेयर? इट इज़ एट योर एल्बो एंड जॉइंट्स एट द नीज. आपके घुटने में और आपके एल्बो में जो जॉइंट पाया जाता है वो क्या होता है बच्चों? हिंज जॉइंट होता है. ठीक है, इसमें बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा. नेक्स्ट है आपका व्हाट? विच जॉइंट? फिक्स जॉइंट्स. तो फिक्स जॉइंट्स की अगर बात करें बच्चे, ये आपके हेड में पाया जाता है ना? यहाँ पे बहुत छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, आपस में मिलके एक स्कल बनाते हैं, है ना? ये बोन जो होती है दे कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट्स. इन जॉइंट्स पे इनका मूवमेंट नहीं होता है, एंड सच जॉइंट्स आर कॉल्ड व्हाट? फिक्स जॉइंट्स. ठीक है, तो ये बात हो गई आपके जॉइंट्स की. हमने ह्यूमन स्केलेटन भी देख लिया. ठीक है बच्चों, स्कल भी देख लिया. अब आते हैं कि हाउ बोन्स मूव. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, कि भाई आपकी बोन्स मूव कैसे करती हैं, है ना? ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो बच्चों जो मसल्स होती है ना, ये क्या होती है? मूवमेंट के समय कॉन्ट्रैक्ट होती हैं यानी सिकुड़ती हैं, और रिलैक्स्ड होती हैं, है ना? तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन. तो जब ये कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगी यानी शॉर्ट होंगी, शॉर्टनिंग होगी, या जब ये रिलैक्स करेंगी तभी मसल्स की मदद से क्या होता है बच्चों? मूवमेंट आपको देखने को मिलता है ना? क्योंकि जो वन एंड मसल का एक एंड होता है वो क्या होता है? आपके मूवेबल बोन से क्या होता है? जुड़ा होता है ना? जबकि जो दूसरा एंड होता है वो क्या होता है? फिक्स बोन से जुड़ा होता है. ध्यान रखिएगा, आपके मसल का एक जो एंड होता है वो मूवेबल बोन से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा एंड जो होता है वो फिक्स जो बोन से जुड़ा होता है. जब मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या होता है? इट पुल्स द मूवेबल बोन, है ना? इट पुल्स द मूवेबल बोन. जब भी आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी यानी सिकुड़ेगी, या आपके मूवेबल बोन को क्या करेगा? पुल करेगा. ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए जितने भी मसल्स होते हैं ना दे वर्क्स इन पेयर. आप देख सकते हो दे हैव टू मसल्स हैं, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, है ना? तो ये हमेशा पेयर में वर्क करते हैं, है ना? और इस तरीके से आपको मूवमेंट देखने को बेसिकली मिलता है. तो कॉन्ट्रैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और रिलैक्सेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं? मूव. मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से हम चीज़ें मूव कर सकते हैं. ठीक है ना? जब मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती है इट बिकम शॉर्टर, है ना? जब भी मसल आपकी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो शॉर्टर छोटी हो जाती है, स्टिफर हो जाती है, थिकर हो जाती है. और यही क्या करते हैं? आपके बोन को पुल करती है. और ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, द मसल्स वर्क्स इन पेयर. व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन. ठीक है, एंड व्हेन द अदर मसल ऑफ द पेयर एट दैट टाइम व्हाट? रिलैक्सेस. जब एक मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेगी दूसरी क्या करेगी? रिलैक्स करेगी. तो इस तरीके से वी कैन से अ मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश. ध्यान रखिएगा, मसल्स आपके सिर्फ पुल कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते, है ना? सो दस द टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन. यानी दो मसल्स को हमेशा वर्क करना पड़ेगा एक बोन को मूव करने के लिए. इसीलिए मैंने कहा अ मसल्स ऑलवेज वर्क्स इन व्हाट? पेयर्स. ठीक है, नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कार्टिलेज. कार्टिलेज क्या होता है ना बच्चों? जो कार्टिलेज है
ये पाया जाता है आपके एंड ऑफ द बोन्स, यानी जो बोन्स होते हैं उनके एंड्स पे पाया जाता है ना. द एंड्स ऑफ द बोन्स आर कवर्ड विद अ टफ इलास्टिक टिश्यू. कार्टिलेज इज व्हाट? कार्टिलेज इज टिश्यू. व्हाट आर टिश्यूज? टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स. बहुत सारे सेल्स आपस में क्या होगा, ग्रुप्ड होकर के क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं. आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है. सो जो बोन्स के एंड होते हैं ना, वहाँ पे क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है. एंड कार्टिलेज मेक्स द एंड ऑफ द बोन स्मूथ एंड इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स. आपको पता है जब दो बोन सपोज मूवमेंट कर रहे हैं ना, तो वो क्या होगा, वो बोन घिसेंगी भी, है ना, क्योंकि बहुत पास पास हैं जो, और एक बोन दूसरे बोन के ऊपर है, तो क्या होगा, वो घिसेंगे, स्लाइड करेंगे, तो है ना, फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, तो उससे आपकी बोन घिस सकते हैं. तो क्या होगा, वहाँ पे फ्रिक्शन को कम करने के लिए कार्टिलेज पाया जाता है बोन्स के एंड्स पे, है ना, जो आपके मूवमेंट में क्या करता है बच्चों, हेल्प करता है. कार्टिलेज आपके बहुत वेरियस पार्ट्स में पाया जाता है बच्चों. जैसे यू कैन फील द कार्टिलेज इन द अपर पार्ट ऑफ योर ईयर. आपके ईयर का जो अपर पार्ट है, ऊपर का पार्ट है, ठीक है, वो कार्टिलेज का बना हुआ है. ठीक है, जो फ्रंट पार्ट होता है, टिप ऑफ द नोज, आपके नोज की जो टिप होती है, यहाँ भी आपको कार्टिलेज देखने को मिलेगा, है ना. ये जो पार्ट्स होते हैं बहुत हार्ड नहीं होते हैं बोन्स की तरह. दे कैन बी बेंट, है ना. सो दे आर नॉट एज हार्ड एट द बोन्स, ठीक है. और ये इनको बेंड भी किया जा सकता है. इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कार्टिलेज बोल सकते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे इन द फिगर, ठीक है. तो ये बात हो गई बच्चों किसकी, कार्टिलेज की, है ना. अब हम बात करेंगे कि गेट ऑफ एनिमल्स, यानी किस गेट मतलब मूवमेंट ऑफ एनिमल्स. ये तो ह्यूमंस की बात हो गई. अब डिफरेंट एनिमल्स में किस तरीके का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है. तो कभी आपने अर्थवॉर्म देखा है ना. तो अर्थवॉर्म क्या है बच्चों, एक इनवर्टिब्रेट है. सबसे पहले मैं बता दूं कि वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है. वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल होते हैं दैट हैव अ बैकबोन, है ना. बैकबोन अभी मैंने बताया था ना, 33 स्मॉल बोन्स को मिलकर क्या बनता है, एक बैकबोन बनता है, जिनको वर्टिब्रेट बोलते हैं, वर्टिब्रे बोलते हैं. तो ऐसे एनिमल जिनमें बैकबोन पाई जाएगी, है ना, द एनिमल दैट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड व्हाट, वर्टिब्रेट्स. उनको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिब्रेट्स बोलेंगे. जैसे एग्जांपल फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, लिजर्ड हो गया, हॉर्स हो गया, टाइगर हो गया, बर्ड्स हो गई, है ना. ये सब क्या है बच्चों, वर्टिब्रेट्स. इनमें पीछे रीढ़ की हड्डी, अगर हिंदी में बोले रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, बैकबोन इट इज कॉल्ड, ठीक है, पाई जाती है. दूसरा होगा इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन, है ना. इनके पास बैकबोन बच्चों नहीं होती, है ना. इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्टिब्रेट्स बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, स्नेल, कॉकरोच एक्सेट्रा, है ना. तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो वर्टिब्रेट्स में मूवमेंट होता है और जो इनवर्टिब्रेट्स में मूवमेंट होता है, दे बोथ आर डिफरेंट. तो एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं अर्थवॉर्म की, ठीक है. आपको पता है बच्चों की जो बॉडी होती है अर्थवॉर्म की, वो क्या होता है, वो बहुत स्मॉल रिंग्स यानी सेगमेंट्स को मिलके बनते हैं. उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट, है ना. तो जो अर्थवॉर्म होते हैं, इट डज नॉट हैव बोन. पहली चीज इसमें क्या होता है, इट हैज अ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी, ठीक है. जो अर्थवॉर्म होता है इसमें क्या होता है बच्चों, मसल्स होते हैं जो बॉडी को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं और छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं. और ये जब मूवमेंट होता है अर्थवॉर्म का, पहले एक्सटेंड करेगा अपनी बॉडी को आगे की तरफ, है ना. और जब ये मैं मूवमेंट बता रहा हूँ कैसे होता है, ठीक है. जब अर्थवॉर्म आगे की अपनी बॉडी को आगे की तरफ मूव करेगा यानी एक्सटेंड करेगा, तो अपना पीछे वाला पार्ट क्या करेगा, फिक्स्ड रखेगा और से इसको चिपका के रखेगा, है ना. फिर क्या होगा, देन इट फिक्सेस द, उसके बाद पहला मूवमेंट क्या हुआ बच्चों, एक बार ध्यान से देखो, सुनो. जब अर्थवॉर्म मूव करता है तो फर्स्ट पार्ट में क्या होगा कि पीछे का जो पार्ट है उसको ज़मीन से चिपका के रखेगा और आगे के पार्ट को क्या करेगा, मूव करेगा. फिर सेकंड स्टेप में आगे के पार्ट को फिक्स कर लेगा और फिर पीछे वाले पार्ट को आगे की तरफ क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा. समझ में आ रहा है. तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से वो क्या करता है बच्चों, वो मूवमेंट करता है अर्थवॉर्म, है ना. एक्सटेंड, लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग, यानी ये जो सेगमेंट्स इनकी लेंथनिंग और शॉर्टनिंग से ही क्या होता है, आपका अर्थवॉर्म मूव करता है ना. तो अर्थवॉर्म की बॉडी बहुत ही स्मॉल, सेवरल बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनती है, उनको सेगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना. तो इसका जो मूवमेंट होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसकी बॉडी ना एक स्लिमी सब्सटेंस, चिपचिपा सब्सटेंस क्या करती है, सिक्रीट करती है, निकालती है, जो मूवमेंट में क्या करता है बच्चों, हेल्प करता
है ना। और ये जो सेगमेंट्स होते हैं ना, बहुत छोटे 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 ब्रिसल्स होते हैं, हेयर्स बोल सकते हैं, ठीक है, जो अर्थवर्म को क्या करता है, ग्रिप, सरफेस करता है, ग्रिप बनाने में हेल्प करता है, और जिससे वो उसकी बॉडी क्या कर सकती है बच्चों, मूव कर सकती है ना। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो अर्थवर्म होता है ना, ये इन्वर्टिब्रेट तो है ही, यानी बैकबोन तो इसमें पाए नहीं जाते हैं, और इसका जो बॉडी होती है वो ट्यूब लाइक, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, कोई बोन्स नहीं होती है है ना। तो जब इसमें बोन्स नहीं होते हैं तो इसका बॉडी का शेप कैसे मेंटेन होता है, कैसे इसकी बॉडी की शेप मेंटेन होती है, इसकी बॉडी की शेप मेंटेन होती है किसके द्वारा, जो इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है ना। तो द बॉडी शेप ऑफ द अर्थवर्म इज मेंटेन बाय द फ्लूइड प्रेजेंट इन इनसाइड द बॉडी, एंड दिस काइंड ऑफ स्केलेटन इज कॉल्ड व्हाट, लिक्विड स्केलेटन। ऐसे स्केलेटन को जिसमें बोन्स नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें फ्लूइड पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है ना, और वो आपकी बॉडी की शेप को मेंटेन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड स्केलेटन। यानी अर्थवर्म में कैसा स्केलेटन पाया जाता है बच्चों, लिक्विड स्केलेटन पाया जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके अर्थवर्म की। अब हम बात करते हैं स्नेल की। आपने देखा कभी स्नेल, फिगर 8.18 देखिए, है ना, ऑब्वियसली आपने कई बार देखा होगा बरसात के रेनी सीजन्स में, है ना। तो बच्चों जो आपका स्नेल होता है ना, इट इज़ अ वेरी स्लो मूविंग एनिमल, बहुत स्लो मूव करता है। और एक चीज़ और, स्नेल की तरह आपके इसमें अर्थवर्म की तरह स्नेल में भी आपका लिक्विड स्केलेटन पाया जाता है, ठीक है। लेकिन स्नेल्स के बॉडी के ऊपर एक शेल पाया जाता है जो बहुत ही हार्ड होता है, और यही जो शेल होता है ना, ये स्नेल को क्या करता है बच्चों, प्रोटेक्ट करता है एनिमीज से, है ना, या सन से, हीट से, है ना, इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो स्नेल में क्या होता है, शेल होता है इनसाइड बॉडी, विच कैन हाइड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द हीट ऑफ द सन एंड एनिमीज। तो जो शेल होता है इसको हम लोग आउटर स्केलेटन बोलते हैं, है ना। ये बहुत ही हार्ड होता है, ये कि बोन्स का नहीं बना होता है, ठीक है, बट ये बहुत हार्ड होता है। इनके क्या होता है बच्चों, जो आपके स्नेल होता है, इसके इनके इनमें क्या होता है, एक 1 पेयर ऑफ टेंटिकल पाए जाते हैं, देख सकते हैं आगे की तरफ 2 एंटीना टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको टेंटिकल बोलते हैं। इन्हीं टेंटिकल के ऊपर इनकी आंखें होती हैं, है ना, दे बियर द आई एट द टिप। और आपको पता है ये जो स्नेल है, ये एक इसके पास एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन पाया जाता है, इसको हम लोग फुट बोलते हैं, FOOT, फुट। तो फुट क्या होता है बच्चों, फुट एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है ना, जो आपको स्नेल को मूवमेंट में क्या करता है बच्चों, हेल्प करता है। तो स्नेल बेसिकली मूव किससे करता है, फुट से मूव करता है ना। और इसी फुट में क्या होता है, एक स्लिमी चिपचिपा सब्सटेंस निकलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकस, जो उसको स्लाइड करने में, धीरे धीरे मूव करने में हेल्प करता है, क्रॉल करने में बच्चों क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉकरोच की। बच्चों अगर कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच की बॉडी जो होती है ना, इट इज़ कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन, है ना, एक आउटर स्केलेटन पाया जाता है, इसके ऊपर हार्ड होता है वो भी, है ना। और कॉकरोच में भी क्या होता है, पेयर ऑफ एंटीना, एंटीना 2 पेयर, ये सॉरी 1 पेयर ऑफ एंटीना पाया जाता है, जो उसको स्मेल वगैरह करने में हेल्प करता है। समझ में आ रहा है। कॉकरोच में 2 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं, कितने, 2 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं, है ना। और जो कॉकरोच होता है ये वॉक भी कर सकता है, क्लाइंब भी कर सकता है, और इवन ये थोड़ा बहुत उड़ भी सकता है, फ्लाई भी कर सकता है, ठीक है। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग, इनके 3 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं, यानी 6 लेग्स होते हैं, और यही इनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं वॉकिंग में, है ना। इनकी जो बॉडी होती है वो हार्ड आउटर स्केलेटन से कवर्ड होती है, और ये जो आउटर स्केलेटन होता है इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, डिफरेंट यूनिट जॉइंट्स दैट जॉइंट टुगेदर एंड दैट परमिट द व्हाट, मूवमेंट, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो इनकी ब्रेस्ट मसल्स होती हैं कॉकरोच की, ये हेल्प करती हैं इनको उड़ने में, थोड़ा सा इनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलो अब आते हैं बर्ड्स पे। अगर बर्ड्स की बात करें बच्चों, तो बर्ड्स क्या करते हैं, इट इज़ फ्लाई इन एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। कुछ बर्ड्स ऐसी है जैसे डक हो गए, स्वॉन हो गए, दे ऑल्सो स्विम इन वाटर, है ना। एंड द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडी आर वेल सूटेड फॉर द फ्लाइंग। आपको पता है ये बर्ड इसलिए मूव कर सकती है या फ्लाई कर सकती है क्योंकि बॉडी इस तरीके से सूट करती है, फ्लाइंग के लिए ही सूट करती है। क्यों, क्या क्या ऐसी स्ट्रक्चर हैं बच्चों, ऐसी कौन सी खासियत है बर्ड्स में जो उनको उड़ने में हेल्प करती हैं। क्यों नहीं हम लोग उड़ पाते हैं, है ना, क्यों नहीं और जानवर उड़ पाते हैं, क्यों बर्ड से उड़ पाती है। तो कुछ तो ऐसा इंटरेस्टिंग फीचर कैरेक्टरिस्टिक होगा ना, है ना, इन द बर्ड्स। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों,
कि जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब याद आ रहा है, कुछ बताया था मैंने, जो आगे और पीछे से क्या होती है, नुकीली होती है, बीच में थोड़ी चौड़ी होती है ना। तो ऐसे स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। तो बर्ड्स की बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, पहली चीज़, विच मेक इट ईजियर फॉर देम टू मूव थ्रू एयर, है ना। और इसी स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से ये एयर में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं ईजिली। सेकेंड पॉइंट, इनकी जो बोन्स होती हैं दे आर हॉलो, खोखली होती हैं, और इसीलिए खोखली होने की वजह से बहुत ही हल्की, लाइट वेटेड होती है ना। तो सेकंड इनका जो कैरेक्टरिस्टिक ये हो कि इनकी जो बोन्स, द बोन्स आर हॉलो एंड विच मेक देम व्हाट, लाइट वेटेड। थर्ड इज दे हैव विंग्स, दे हैव विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई। इनके पास विंग्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट है बच्चों, दे हैव द पावरफुल चेस्ट मसल्स। इनके जो चेस्ट मसल्स होते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, है ना, जो जिसकी वजह से अपने फ्लैप कर सकते हैं विंग्स को फ्लाइट के समय, और इजीली क्या कर सकते हैं बच्चों, उड़ सकते हैं, है ना। इनकी जो बोन्स होती हैं हिंड लिम्स की, है ना, दे आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड व्हाट, पर्चिंग। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये एक स्केलेटन है बर्ड का, है ना। और इनके जो फोर लिम्ब होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं। हिंड लिम्ब मतलब पीछे के पैर, फोर लिम्ब्स आगे के, है ना। तो जो हाइंड लिम्स होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, वॉकिंग वगैरह में, पर्चिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। जो आपके आगे का पार्ट हो गया, फोर लिम्स हो गया, दे आर मॉडिफाइड एज व्हाट, विंग्स। इनकी शोल्डर बोन्स, इनकी जो शोल्डर बोन्स होते हैं दे आर वेरी स्ट्रांग, है ना। इनकी जो ब्रेस्ट बोन होते हैं दे आर मॉडिफाइड टू होल्ड द मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आते हैं फिशेस पे, है ना। तो फिशेस, मछली जल की रानी है, आपने सुना ही होगी बचपन में कविता, है ना। ऑब्वियसली जल की रानी है ये, ठीक है ना। और फिशेस वर्टिब्रेट्स में आती हैं। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, उन्हें एक इंटरनल स्केलेटन पाया जाता है जो बोन्स का बना होता है ना, और साथ में कार्टिलेज का भी बना होता है कहीं की जगह। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो ज़्यादातर जो फिशेज होते हैं, यानी मोस्ट फिशेज हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी, पहली चीज़, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कि जितनी जो फिशेज हैं मोस्ट ऑफ देम, उसमें से क्या है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। यानी इनके जो हेड और जो टेल होता है वो नैरो होता है, और जो मिडिल पोर्शन होता है बॉडी का वो ब्रॉडर होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है बच्चों, कि इस टाइप का जो शेप होता है, इट ऑफर द लीस्ट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ वाटर एंड मेक इट ईजियर फॉर देम टू स्विम थ्रू वाटर। यानी इस टाइप के स्ट्रक्चर से क्या होता है, जो सामने जो पानी का बहाव होता है ना, उससे ये ईजिली निकल सकती है उसको काट करके, यानी लीस्ट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ईजिली ये मूव कर सकते हैं। एरोप्लेन, शिप और जो बोट होते हैं वो स्ट्रीमलाइन शेप की बनाई जाती हैं। क्यों? बिकॉज इट रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ एयर एंड वाटर। यानी सामने से जो एयर और वाटर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या है, अ फोर्स दैट स्टॉप और स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी कोई अगर मूविंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको क्या कर सकता है, उसको स्लो डाउन, उसको रोकने के लिए जो फोर्स होता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर सामने से पानी बह के आ रहा है तो ऑब्वियसली क्या करेगा, इधर से अगर कोई चीज़ जा रही है तो उसके फ्लो को या उसके मूवमेंट को क्या करेगा, वो रोकेगा। तो उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। तो वो एयर और आपके वाटर में, ठीक है, आपकी स्ट्रीमलाइन बॉडीज आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो वो फिशेस में आपको देखने को मिलती है, इवन बर्ड्स में भी होती है ना। तो फिशेस में क्या होता है, फिशेस में फिन्स होती हैं और फ्लेक्सिबल बैकबोन होती है ना, जिसकी मदद से आपके फिशेस क्या करते हैं, इजिली स्विम कर सकती हैं। और आपको पता है जो मोस्ट फिशेस है दे हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर। यस, कुछ ऐसे फिशेस होते हैं जिनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग स्विम ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्विम ब्लैडर। दैट कैन बी फिल्ड विद एयर, जो एयर से क्या होती है, फिल्ड हो जाती है ना। और ये बॉडी में ऊपर और नीचे यानी अप एंड डाउन मूवमेंट में क्या करते हैं बच्चों, हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से उन्हें मूवमेंट होता है ना, ये आपको बता दिया। वेल वगैरह का भी मैंने आपको बताया है ना, कि ये ऊपर आती हैं, सरफेस पे आती हैं और वहाँ से क्या करती हैं, है ना, ये ऑक्सीजन लेते हैं और फिर अपने नीचे चले जाती हैं। तो ये बेसिकली आपकी बॉडी हो गई किसकी, बात हो गई आपके फिशेस की, कि इनकी बॉडी भाई स्ट्रीमलाइंड है, इनमें फिन्स वगैरह पाए जाती हैं, है ना। और इनकी जो शेप होती है ये इस टाइप की होती है विच कैन फ्लो अराउंड इट ईजिली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर, है ना। जो स्केलेटन होता है फिश का, इट इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। और आपको पता है ड्यूरिंग स्विमिंग ये जो मसल्स होते हैं, इट मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू कर्व
टू वन साइड एंड टेल पार्ट स्विंग्स टूवर्ड द अपोजिट साइड। आप देख सकते हो यहाँ पे मूवमेंट शो किया गया है आपको फिशेस का, है ना। आगे का जो पार्ट है और पीछे का पार्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसकी वजह से ये क्विकली मूव कर सकते हैं कि बॉडी को, ठीक है। इससे एक जर्क, ठीक है, एक झटका प्रोड्यूस होता है और ये बॉडी को आगे की तरफ पुश कर सकते है ना। तो दिस इज हेल्प बाय फिन्स ऑफ द टेल। जो टेल के फिन्स होते हैं उनके द्वारा क्या कर सकते हैं बच्चों, ये मूव कर सकते हैं, है ना। तो जो फिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी का बैलेंस में भी हेल्प करते हैं, स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं, ये सारी चीज़ें। अब आते हैं स्नेक पे। स्नेक कैसे मूव करते हैं? स्नेक बेसिकली स्लिदर करते हैं, ठीक है। स्नेक्स में क्या होता है, लॉन्ग बैकबोन होती है, बहुत स्मॉल स्मॉल थिन मसल्स की बनी होती हैं, है ना। और दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन थो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। इनकी जो स्नेक होते हैं जो है ना, बेसिकली दे आर इंटरकनेक्टेड बैकबोन होती है, रिब्स और स्किन आपस में जुड़ी होती है। अब देखो जो स्नेक की बॉडी होती है ये कर्व्स होती है बहुत सारे लूप्स में, और ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। हर लूप जो है क्या करता है, स्नेक को एक फॉरवर्ड पुश देता है, जो वो क्या कर सकता है, ग्राउंड को प्रेस करके आगे की तरफ मूव कर सकता है। सिंस इट्स अ लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव इट एट द पुश। यानी स्नेक में बेसिकली आप ये देखो कि भाई स्नेक लिम्ब तो होते नहीं, यानी लेग, आर्म्स, विंग्स ये तो होते नहीं है, ये बेसिकली क्रॉल करता है। दे मूव बाय क्रॉलिंग ऑन देयर बेलीज, है ना। अपने पेट के बल बेलीज पे वो क्रॉल करके ही मूव करते हैं, स्लिदर करते हैं। दे हैव स्केल्स होते हैं विच कवर देयर बॉडी एंड हेल्प देम टू व्हाट, क्रॉल। तो मोस्ट स्नेक्स मूव इन अ वेव लाइक मैनर। वेव की तरह मूव करे, जैसे वेव आती है चली जाती है उस तरीके से मूव करती है। और इनकी जो फ्लेक्सिबल बैकबोन होती है दे हेल्प इन दिस मूवमेंट, है ना। ये अपनी बॉडी को कर्व करते हैं वेव की तरह, है ना। और ये जो वेव लाइक मोशन है इट पुशेस द बॉडी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। तो आज हमने देखा, एक रिवीजन किया बच्चों इस चैप्टर का, जिसमें हम यूजेस ऑफ बोन्स एंड मसल्स के बारे में पढ़ा, मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, है ना। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर था, ठीक है। और इसके थ्रू आप जाइए, अच्छे से रिवाइज करिए। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो डेफिनेटली आप मुझे आस्क करिए, पूछिए, ठीक है। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे। पैराग्राफ मतलब कि मैं आपको 4-5 लाइनों का या 2-3 लाइनों का एक पैराग्राफ दे सकता हूँ और उस पैराग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी 1-2 क्वेश्चंस में आपको और जो आगे वीडियोस जब दूंगा तो उसमें आपको प्रैक्टिस करा दूंगा पैराग्राफ बेस्ड टाइप क्वेश्चंस की। पेपर बहुत टफ है बच्चों, बहुत टफ बनाया है। प्लीज़ एक एक लाइन अच्छे से पढ़िए, वीडियो को रिवाइज करिए, बुक्स को अच्छे से पढ़िए, जितना अच्छे से डायग्राम्स की प्रैक्टिस करिए, ठीक है, सो दैट आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय।